to all of you. So in the last class we were studying in economics the statistics, in which we have studied the introduction of statistics. We have already discussed the what is the meaning of economics, scarcity and the economic problem, meaning of the scarcity, meaning of the economic problem, as well as what are the different economic activities. So economic activities refers to those activities which is related to use of the scarce resources to satisfy the basically satisfy the maximum of the unlimited human wants. We know very well that the wants of the human are unlimited, whereas the resources which is present in our economy, it is the limited. So economic activities are classified into the production, consumption, as well as the distribution. Okay, so in the last class we have already discussed what is the production in the economic activity. So in today's class we are going to study what is the consumption. Okay, sorry. So let's start. Yes, consumption is that economic activity which is related to use of goods and services for the direct satisfaction of individual and collective wants. There would be have been no production if there was no consumption. For example, drinking water or milk, services of teachers or doctor are consumption activity. Okay, so consumption is that activity, consumption वो activity है which is related to the use of goods and services. कि किससे related होता है कि use of goods and services, जिसमें हम goods and services को use करते हैं for the direct satisfaction of the individual and the collective wants. कि इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जो भी इंडिविजुअल और कलेक्टिव पीपल हैं उनकी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. ठीक है, हम किसी भी कमोडिटी का कंजप्शन क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ कंज्यूमिंग दी दोज कमोडिटी वी गेट दी सेटिस्फैक्शन. फॉर दैट पर्पज वी आर यूजिंग दी डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर दी direct satisfaction of the wants. Okay, the satisfaction of wants, it may be related to the individual want or it may be related to the collective wants. So there would have no been production if there was no consumption. ठीक है, अगर कोई भी कंजप्शन नहीं होगा सो देयर हैव बीन नो प्रोडक्शन. ठीक है, अगर कोई कमोडिटी को कंज्यूम ही नहीं करेगा तो प्रोडक्शन भी किसके लिए होगा? प्रोडक्शन तो इसीलिए हो रहा है ना क्योंकि लोग कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं. इफ देयर वर नो एनी काइंड ऑफ कंजप्शन, so ultimately there will be no production process also. For example, drinking water. Okay, we are consuming, we are taking the water, milk, services of the teachers or the doctors, etc. are the consumption activity. Okay, they are doing the different kind of activities for the in which they have taken the some earning, and from that earning they fulfill their human wants. So why we study of the consumption unit? So we want to know how the consumer decide, given his income and many alternative goods, to choose from what to buy when he knows the prices. This is the study of consumption. कि study of consumption क्या होता है? तो we want to know how the consumer decide. इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि कंज्यूमर के पास क्या है, डिफरेंट कंजप्शन यूनिट प्रेजेंट होती है. मतलब हमारे पास, आप देखते हो कि आप मार्केट में जाते हो, आपको डिफरेंट काइंड ऑफ एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है डिफरेंट कमोडिटीज़ को परचेज़ करने के लिए. आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मल्टी ऑप्शंस होते हैं कि आप कोई भी कमोडिटी को परचेज़ कर सको गिवन हिज इनकम. जब आपकी ऑलरेडी गिवन इनकम हो, आपके पास इनकम हो, एंड मैनी ऑल्टरनेटिव गुड्स टू चूज़ फ्रॉम. ठीक है, और उसमें बहुत सारे ऑल्टरनेटिव गुड्स होते हैं. जैसे हम कोई चॉकलेट परचेज़ कर रहे हो, आप कॉपी परचेज़ करने जा रहे हो, तो उसमें बहुत सारी ऑप्शंस आ जाते हैं. आपकी नवनीत की है, क्लासिक की है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉपी आपको मिल जाती है, क्लासमेट्स की है. तो आप उसमें से क्या करते हो, एक चूज़ करते हो, एज वेल एज व्हाट टू बाय व्हेन ही नोज द प्राइस. कि
वो जब कोई भी एज अ कंज्यूमर वो क्या बाई करता है, व्हेन ही नो व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द एनी कमोडिटी। जब किसी कमोडिटी की प्राइस कितनी है उसके बाद कोई भी कंज्यूमर कितनी कमोडिटी को कंज्यूम करता है। सो दैट्स वाई वी स्टडी ऑफ कंजप्शन। इसलिए हम क्या करते हैं, कंजप्शन की स्टडी करते हैं कि कंज्यूमर कैसे डिफरेंट कमोडिटी में क्या करते हैं, चूज़ करता है। जब उसकी ऑलरेडी गिवन इनकम होती है कैसे वो अल्टरनेटिव चूज़ करता है, when he already know what is the price of the product, so which kind of product he will buy or she will buy. For that purpose we will go through the study of consumption. तब हम लोग क्या करते हैं, कंजप्शन की स्टडी करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन. Distribution is that economic activity which relates to determination of price of factors of production. This is known as the factor pricing. As you know, there are 4 types of factor of production, that is land, labor, capital, entrepreneur or the enterprises. So distribution is that economic activity. Distribution वो economic activity है which relates to the determination of the price of factor of production. कि इसमें क्या होता है कि जो भी different factors of production है उनकी प्राइस को क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। कि लैंड पे जो हम कोई भी लैंड अगर लेंगे तो उसकी कितनी प्राइस होगी, कितना हम रेंट पे करेंगे, लेबर को अगर हम हायर करेंगे तो उसको कितना वेजेस देंगे, कैपिटल पे क्या है, कितना इंटरेस्ट पे करना है, इंटरप्राइजेस को जो भी डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंटरप्राइजेस हैं, उनको कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं प्राइस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी हम क्या करते हैं, प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। सो दिस इज़ नोन एज द फैक्टर प्राइसिंग। इसी को क्या बोलते हैं, फैक्टर प्राइसिंग बोलते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द स्टडी टू नो हाउ नेशनल इनकम इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द स्टडी, इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन किसकी स्टडी करते हैं कि हाउ नेशनल इनकम इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। जो कोई भी इनकम, नेशनल इनकम होती है कंट्री की, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, रेंट में कितना मिलता है, वेजेस में कितना मिलता है, इंटरेस्ट में कितना मिलता है, एज वेल एज प्रॉफिट में कितना मिलता है। ओके, सो स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वी वांट टू नो हाउ द नेशनल इनकम इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द रेंट, वेजेस, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। दिस इज़ द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें हम लोग इसकी स्टडी क्यों करते हैं कि वी वांट टू नो कि जो भी इनकम होती है डिफरेंट फैक्टर्स की, उनको कैसे डिटरमाइन होता है, कितनी इनकम रेंट पे मिलती है, एज अ रेंट पे करते हैं, वेजेस पे कितना होता है, प्रॉफिट कितना मिलता है, इंटरेस्ट कितना पे होता है। तो इसी के लिए हम लोग स्टडी करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। ओके, सो अकॉर्डिंग टू चैपमैन, इकोनॉमिक्स इज़ द डैट ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट स्टडीज़ कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ नॉलेज है, नॉलेज की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं कि कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज ऑफ द कमोडिटी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, दैट मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस अमंग द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज definition of economics in the case of scarcity definition. Okay, different economics has given the different definition of economics. According to every economics, it is totally depend on them कि वो उस definition को किस perspective से explain कर रहे हैं। तो scarcity जो definition है, it is given by the Lord Robbins. Okay, so this definition considered economics as a science. Economics क्या है, एक साइंस है which studied human behavior, जो क्या करता है, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है एज अ रिलेशनशिप। किसके बीच में रिलेशन, बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स एंड स्कैर्स मीन्स, बिटवीन दी स्कैर्स मीन्स मतलब रिसोर्सेज। ओके, अनलिमिटेड वांट्स की इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज़ द साइंस वो किसकी स्टडी करता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है एज रिलेशनशिप। किसके बीच में रिलेशन पर स्टडी करता है, बिटवीन दी अनलिमिटेड वांट्स, वांट अनलिमिटेड किसकी होगी, ह्यूमन की अनलिमिटेड वांट, एंड स्कैर्स मीन्स द रिसोर्सेज विच इज़ स्कैर्स। इनके बीच में स्टडी करता है कि कैसे कोई इंडिविजुअल
स्कैर्स रिसोर्सेज को ऑल्टरनेटिव रख के अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को अर्न करता है. सो लॉर्ड रॉबिन्स इन हिज बुक, उनकी बुक थी एन एसे ऑन द नेचर एंड द significance of the economic science. Okay, this book is wrote by the Lord Robbins, an essay on nature and significance of economic science, published in 1932. 1932 में publish हुई थी and has defined economics in these words. Economics को उन्होंने ऐसे explain किया था that economics is the science. Economics क्या एक science है that studied the human behavior. वो human behavior की study करता है as a relation between ends and the scarce means. ठीक है, जो relation जो किसके बीच में study करता है end. Here the end means the want of the any person or the people is endless, and the resources it is the scarce which have alternative uses. की जो भी हमारी जो वांट होती है एज अ कंज्यूमर, हमारी वांट क्या होती है, अनलिमिटेड होती है. इट कांट बी एंड, वो कभी भी एंड नहीं हो सकती है. स्कैर्स मीन्स जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, वो स्कैर्स अमाउंट में है विच हैव ऑल्टरनेटिव यूज़. कि जिसका जितने रिसोर्सेज हैं, स्कैर्स रिसोर्सेज हैं, उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं. ठीक है, कि अगर डिफरेंट कमोडिटी दी है, हम कौन सी कमोडिटी को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी एज वेल एज हम कितना ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, जिससे हमको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वी विल परचेज दैट कमोडिटी. ओके, सो अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज द साइंस. इट डील विद द हाउ द रिसोर्सेज ऑफ दिस सोसाइटी शुड बी एलोकेटेड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिफरेंट वांट. ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या है, इज़ द साइंस ऑफ चॉइस. ये चॉइस की स्टडी साइंस है, मतलब जिसमें हम लोग को चॉइस करना है कि रिसोर्सेज हमको पता है स्कैर्स हैं, तो उनमें हमको चॉइस करना है कि हम किस रिसोर्सेज को हम अडॉप्ट करें जिससे हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले. सो इट डील्स विद द हाउ द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी शुड बी एलोकेटेड. कि जो रिसोर्सेज हैं सोसाइटी के वो कैसे एलोकेट होना चाहिए, इनको हम कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए व्हेन द रिसोर्सेज आर द लिमिटेड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिफरेंट वांट्स. जब वांट्स क्या हैं, हमारी डिफरेंट वांट्स हैं, हम उनको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं. ओके, बट द क्रिटिसिज्म इज गिवन हियर, दिस डेफिनेशन डज नॉट रिलेट टू वेलफेयर एंड द ग्रोथ एस्पेक्ट. अब ये डेफिनेशन कहीं भी ये एक्सप्लेन नहीं कर रही है कि इकॉनमी में, इकोनॉमिक्स में हम लोग डिफरेंट इकॉनमी में हम लोग किसी इकॉनमी की वेलफेयर की भी बात करते हैं कि इकॉनमी में वेलफेयर भी होना चाहिए या इकॉनमी में ग्रोथ भी होना चाहिए. तो हम इन सारी चीज़ों की स्टडी नहीं कर रहे हैं. तो this is the one of the criticism of the definition which is given by the Robbins. Okay, so there are also some definitions. Wealth definition, it is given by the Adam Smith. It's not important to read each and every definition, so you must know only. So wealth definition, it is given by the Adam Smith. Okay, next one is welfare definition. It is given by the Alfred Marshall. Okay, and the growth definition, it is given by the Paul A. Samuelson. Okay, we have studied only the Robbins definition, which is based on this, which is based on the different the scarcity definition. But there are also some different definitions like wealth definition, which is given by the Adam Smith, welfare definition which is given by the Alfred Marshall, and the growth definition which is given by the Paul A. Samuelson. Okay, so next we are moving to the statistics in economics. Okay, now we will study the statistics in economics. Why we are going through the statistics in economics? हम economics में statistics की study क्यों कर रहे हैं? So let's start. That is, we need to know more about the economic facts in terms of numbers. Such economic facts are also known as data. The purpose of collecting data about these economic problems is to understand and explain these problems
in terms of the various cause behind them. Okay, so we need to know much more about the economic facts in terms of numbers. Okay, हमें क्या है कि डिफरेंट इकोनॉमिक फैक्ट्स को जानना है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. जो नंबर्स के टर्म में हम इकोनॉमिक फैक्ट तो जान गए कि इकोनॉमिक्स में ये होता है, हम लोग इसकी स्टडी करते हैं. डिफरेंट स्कैरसिटी होती है, वांट हमारी अनलिमिटेड होती है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, इकॉनमी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स का. बट डिफरेंट इकोनॉमिक फैक्ट्स को हम लोग इन टर्म्स ऑफ नंबर में भी स्टडी कर सकते हैं कि कितना जैसे एम्प्लॉयमेंट रेट कितना हुआ, पॉवर्टी कितना है, कंट्री की पॉपुलेशन कितना है. तो ये सब हम लोग क्या है नंबर्स में जानते हैं ना कि 135 करोड़ बोलते हैं कि पॉपुलेशन है. तो ये क्या है नंबर्स में हम जानते हैं ना. सो सच इकोनॉमिक फैक्ट्स आर ऑल्सो नोन एज डेटा. ठीक है, जो हम इकोनॉमिक फैक्ट्स को जान रहे हैं कि इन नंबर्स, बेसिकली इन दी नंबर्स, इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेटा. ठीक है, जो भी डिफरेंट इकोनॉमिक फैक्ट्स हैं कि हम पॉपुलेशन का रेशियो पॉपुलेशन रेट जान रहे हैं, एज वेल एज सेक्स रेशियो जान रहे हैं कि कितनी गर्ल और कितने बॉय है, मेल फीमेल का रेशियो, लिटरेसी का परसेंट कितना है हमारी कंट्री में, एज वेल एज कि कितनी पॉपुलेशन है. डिफरेंट एस्पेक्ट्स हम लोग जान रहे हैं इन दी टर्म्स ऑफ नंबर्स. तो ये क्या है डिफरेंट इकोनॉमिक फैक्ट्स हैं. तो सच इकोनॉमिक फैक्ट्स आर ऑल्सो नोन एज डेटा. ठीक है, जो ये इकोनॉमिक फैक्ट होते हैं नंबर्स में, इन्हें हम डेटा भी बोलते हैं. सो द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग डेटा अबाउट दीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन दीज प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ वेरियस कॉजेज बिहाइंड दैम. ओके, सो ये इसका पर्पस क्या है कि हम डिफरेंट डेटा कलेक्ट जो कर रहे हैं. ठीक है, हम ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ना, हम टोटल पॉपुलेशन किसी कंट्री की कैसे जान रहे हैं. कोई ऐसा इंडिविजुअल तो है नहीं कि वो बस एक जगह बैठ के काउंट कर रहा है. वो क्या करें, हम लोग पूरी ओवरऑल, अगर हम लोग इंडिया में बात करते हैं तो ओवरऑल इसकी स्टडी होती है. मतलब हर एक घर जाके पूछा जाता है पॉपुलेशन, फिर उसको कंपाइल किया जाता है. थ्रू दैट हम लोग जान पाते हैं कि कंट्री की पॉपुलेशन इतनी है. तो द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग डेटा, इन डेटा को जो कलेक्ट करने का पर्पस है अबाउट दीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ टू अंडरस्टैंड. ठीक है, अबाउट दीज जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उनको क्या करना है, समझना है और एक्सप्लेन करना है दीज प्रॉब्लम. पहले हम क्या जानते, देखिए जैसे कोई प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की. ठीक है, हमारी इकॉनमी में, हमारी इंडिया में क्या है, बहुत प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की. लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है. देखो, तो हमने पहले क्या किया, पूरे ऑल ओवर दी कंट्री हमने अनएम्प्लॉयमेंट पता कर लिया कि इंडिया में इतने परसेंट, 10%, 20% जो भी है, या बस 4% ही एम्प्लॉयमेंट रेट है और जो है लोग अनएम्प्लॉयड है. तो पहले हमने क्या किया, डेटा कलेक्ट कर लिया. फिर क्या है, अबाउट दीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम. तो ये अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी इकॉनमी के लिए प्रॉब्लम है कि नहीं, कि लोगों के पास वर्क नहीं है काम करने. तो हम क्या किए कि द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग डेटा अबाउट दीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ टू अंडरस्टैंड, कि जो इकोनॉमिक इसको हमको समझना है एंड एक्सप्लेन दीज प्रॉब्लम, कि इनको हमको इन प्रॉब्लम को एक्सप्लेन भी करना है इन टर्म्स ऑफ वेरियस कॉजेज़ बिहाइंड दैम. कि हमें ये एक्सप्लेन ये करना है कि इसके पीछे कितने ऐसे कौन से कॉजेज़ हैं जो इसके पीछे बिहाइंड हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम बात करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट किसकी वजह से हो सकता है, बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री में, पॉवर्टी हो गया, एज वेल एज प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम नहीं है, और हो गया पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अदर जितने भी सेक्टर्स हैं उनका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं. तो ये सारी क्या हो गई, इसके पीछे की कॉजेज़ हो गई. पहले हमने डेटा कलेक्ट किया. ठीक है, फर्स्ट हमने क्या किया, डेटा कलेक्ट किया. डेटा कलेक्ट करने के बाद हमने देखा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की हमने स्टडी की कि क्यों इतना अनएम्प्लॉयमेंट है. हमने उसको समझा, उसको एक्सप्लेन किया, फिर उसके पीछे का कॉजेज़ जाना कि क्यों ये हो रहा है. तो फिर उसका जब हमने इसके कॉजेज़ जान गए कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, अब हमको क्या करना है, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको रिमूव करने के लिए कुछ मेजर्स निकालेगी, कुछ पॉलिसीज़ को लॉन्च करेगी, जिससे क्या होगा, वो इसके कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स को लेकर आएगी कि हमको अब अपनी कंट्री से पॉवर्टी को अनएम्प्लॉयमेंट को हटाना है. इस केस में क्या करेगी गवर्नमेंट, कोई भी एक स्टेप लेगी, जैसे डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाई, पॉलिसीज़ के थ्रू
अनएम्प्लॉयड जितने भी पर्सन है कंट्री में उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी। तो इसीलिए क्या होता है कि ये फैक्ट आप समझ जाए, इकोनॉमिक फैक्ट होने का मतलब क्या हुआ कि जो भी इकोनॉमिक फैक्ट हैं इन्हीं को हम डेटा बोलते हैं। अब ये सोचिए ये डेटा कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि हमको ऐसे कुछ नहीं पता। आप ऐसे बता सकते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में कितना है, कभी नहीं बता सकते हो जब तक आपके पास प्रॉपर डेटा नहीं होगा। पहले हमने डेटा लिया, हमने उसकी स्टडी की, उसके पीछे का कॉजेज़ देखा, फिर उसके बाद हमने गवर्नमेंट ने डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाई, उस पॉलिसीज़ का भी फिर फाइनल एक रिज़ल्ट देखा, क्या ये जो डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाई हैं वो क्या इतनी इफ़ेक्टिव हैं कि ये जो भी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो उससे रिड्यूस हो सकती है। तो यही क्या होता है डिफरेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करना। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन वी एनालाइज द हार्डशिप ऑफ पॉवर्टी, ओके, हमें पता है कि कंट्री में क्या है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। वी ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन टर्म्स ऑफ द वेरियस फैक्टर सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है, पहले हमने पॉवर्टी की क्या है डेटा जान लिया पहले कि कंट्री में इतने परसेंट लोग पुअर हैं। अब इसके बाद हमने क्या देखा, इसकी स्टडी की, तो हमें पता चला कि इसके कॉजेज़ क्या हैं, मतलब इसके पीछे कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से पॉवर्टी हो गई है। तो हमने ये पता किया कि अनएम्प्लॉयमेंट इसके पीछे बहुत कॉजेज़ है कि लोगों के पास काम नहीं है, तो लोग अपनी मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल को भी फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो पुअर हैं। लो प्रोडक्टिविटी है लेबर की, लेबर काम तो कर रहे हैं बट उनकी प्रोडक्टिविटी जो उनको जिस हिसाब से वो प्रोड्यूस कर सकते हैं वो उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ अच्छी नहीं है कि अगर प्रॉपर टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करें तो भी क्या हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है, एक्सेट्रा। ओके, वी मे देयरफॉर आल्सो फाइंड दोज मेजर्स दैट हेल्प टू सॉल्व एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हम क्या कर सकते हैं, ऐसे डिफरेंट मेजर्स को ले सकते हैं जो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम को क्या करे, सॉल्व करे। इन इकोनॉमिक सच मेजर्स आर नोन एज पॉलिसीज। अब जो डिफरेंट हम मेजर्स ले रहे हैं, रेमीडियल मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स जो हम लोग ले रहे हैं इसको रिमूव करने के, वही क्या होते हैं इकोनॉमिक्स से हम लोग इसको पॉलिसीज़ बोलते हैं। अब इन्हीं पॉलिसीज़ के थ्रू क्या होगा, ये जो जितनी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, पॉवर्टी की, वो क्या होंगी, रिड्यूस होंगी। सो नो एनालिसिस इज ऑफ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम वुड बी पॉसिबल विदाउट डेटा ऑन द वेरियस फैक्टर। ठीक है, कोई भी हम डिफरेंट एनालिसिस एंड कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, नो एनालिसिस ऑफ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम वुड बी पॉसिबल, कि किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की कोई भी एनालिसिस हम कर ही नहीं सकते जब तक हमारे पास कोई प्रॉपर डेटा नहीं होगा। जैसे आप कोई एग्ज़ाम दो, आपके पास प्रॉपर नंबर ही नहीं है, आपने एग्ज़ाम दिया, आपके पास कोई प्रॉपर नंबर नहीं है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बच्चा पास हुआ या फेल हुआ या इसने इतना परसेंट लाया। तो उसके लिए आपके रिज़ल्ट आते हैं, 10th का रिज़ल्ट आता है कि हिंदी में इतना पाया, इंग्लिश में इतना, सोशल, मैथ्स, साइंस में इतना। तो हम उस प्रॉपर डेटा के अकॉर्डिंग ही हम एनालाइज कर पाते हैं कि हाँ, कि आप किस सब्जेक्ट को लेना ज़्यादा प्रेफर करो। तो ये क्या हो गया कि हम डिफरेंट, अगर हमको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमको एनालिसिस हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास उससे रिलेटेड प्रॉपर डेटा होगा। ओके, ऑन दी वेरियस फैक्टर अंडरलाइंग एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, उस डिफरेंट फैक्टर्स पे हमारे पास जब डिफरेंट डेटा होगा जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा, एंड दैट इन सच अ सिचुएशन नो पॉलिसीज कैन बी फॉर्मुलेटेड टू सॉल्व इट। अगर कोई भी डिफरेंट, अगर हमारे पास कोई डेटा नहीं होगा, हम जान ही नहीं पाएंगे, हम यही नहीं बता सकते कि अनएम्प्लॉयमेंट किसकी वजह से हो रहा है, हम नहीं बता सकते पॉवर्टी किसकी वजह से हो रहा है, हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है। तो क्या हम उससे रिलेटेड डिफरेंट पॉलिसीज़ को लॉन्च कर सकती है गवर्नमेंट? कभी नहीं कर सकती है। पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड रूट पे जाते हैं, हम रूट पे जाते हैं, नीचे तक जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, एंड देन वी आर एबल टू सॉर्ट आउट एवरीथिंग। ठीक है, तो कोई नो पॉलिसीज़ कैन बी फॉर्मुलेटेड टू सॉल्व इट। ठीक है, जब तक डेटा नहीं होगा वी कांट एबल टू सॉर्ट आउट दी और सॉल्व दी एनी प्रॉब्लम। दिस इज़ द बेसिक रिलेशन बिटवीन द इकोनॉमिक्स एंड द स्टैटिस्टिक्स। यही एक रिलेशन है स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स का। देखिए, स्टैटिस्टिक्स हमें क्या, इकोनॉमिक्स हमें क्या दिया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम दिया,
स्टैटिस्टिक्स क्या दिया हमें, डिफरेंट डेटा दिया, ठीक है, डिफरेंट डेटा दिया नंबर्स में। अब इन नंबर्स के ही थ्रू हम जो भी डिफरेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम है देन वी विल सॉर्ट आउट, ठीक है। देखिए कैसे रिलेशन हुआ। अभी तो आपको लग रहा होगा कि क्यों हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स में, कोई ज़रूरत ही नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स तो हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा था, इसमें क्या इसकी वैल्यू है। इसकी वैल्यू अब यही है कि डिफरेंट इकोनॉमिक फैक्ट्स होते हैं जिनको हम लोग डेटा कहते हैं। तो थ्रू दी डेटा वी कैन कलेक्ट दी all the different in numbers the what are the different economic problem, जो economic problem है, then we will analyze it, we understand and explain these problem and then we are able to know the cause behind them, उनके पीछे causes क्या हैं। जब हमें cause पता चल जाएगा then we are able to take any preventive measures, okay। फिर हम क्या कर सकते हैं, different preventive measures को ले सकते हैं कि हम कैसे उन economic problem को sort out और remove कर सकते हैं। For that purpose, we are studying the statistics in the economics. इसीलिए हम statistics economics में पढ़ रहे हैं, okay? Now the next one is origin and growth of statistics. कि जो word है statistics वो कहाँ से आया, ठीक है। The term statistics has been derived from the Latin word status, ठीक है। जो भी statistics है वो कहाँ से आया है, आपका लैटिन वर्ड होता है स्टेटस से आया है, विच मीन्स पॉलिटिकल स्टेट, जिसका मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल स्टेट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू द पॉलिटिकल्स एवरीथिंग, कि वहाँ का पॉलिटिकल स्टेटस कैसा है। जर्मन हैव स्पेल्ड इट स्टैटिस्टिक, ओके। जो भी जर्मन्स थे वो इसको क्या बोलते थे, जर्मन स्पेल्ड इसको करते थे स्टैटिस्टिक, मतलब हम लोग स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं तो उन लोग इसको स्टैटिस्टिक बोलते थे। The term statistics was first used by the German scientist Gottfried Eichenwald, ठीक है। इसको इस टर्म को सबसे पहले कौन यूज़ किया था, जर्मन साइंटिस्ट कौन थे, गॉटफ्रेड एकेनवॉल्ड इन 1749 में इन्होंने इस टर्म को फर्स्ट यूज़ किया। ही इज़ द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। मैनी स्टैटिस्टिशियन बॉले एजवर्थ, कार्ल पियर्सन, फिशर्स एंड अदर हैव एडेड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, के बहुत सारे ऐसे स्टैटिस्टिशियंस थे जो लाइक बॉले, एजवर्थ, कार्ल पियर्सन, फिशर और अदर जो स्टैटिस्टिक्स के डेवलपमेंट में क्या किए, हेल्प किए विद दी आफ्टर दी गॉटफ्राइड एकेनवॉल्ड, ठीक है। डिफरेंट स्टैटिस्टिशियन आए जिन्होंने डेवलप किया। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। ओके, स्टैटिस्टिक्स की मीनिंग क्या है। टुडे स्टैटिस्टिक इज़ द बेस ऑफ द एवरी स्टडी। अभी क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, हर एक एरिया में आप किसी भी सब्जेक्ट में चले जाओ, किसी भी स्टडी में चले जाओ, ये बेस है। क्योंकि हम लोग जो भी न्यूमेरिक टर्म्स है वो कहाँ से पाते हैं, स्टैटिस्टिक्स से पाते हैं। सो स्टैटिस्टिक्स इज़ द बेस ऑफ एवरी स्टडी, हर स्टडी का बेस है। इट हैज़ बिकम एन एंकर फॉर ऑल द इकोनॉमिक स्टडी। ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट एंकर बन गया है, मतलब जो रिप्रेजेंट करता है चीज़ों को, बेसिकली इकोनॉमिक स्टडी को, वो उसके थ्रू एक एंकर बन के, मतलब जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको चेकआउट कर रहा है, इसके सारे फंक्शनिंग को, बेसिकली जो भी इकोनॉमिक स्टडीज़ हैं, वेदर इट इज़ अ रिसर्च वर्क और एनी इंडस्ट्री, स्टैटिस्टिकल टूल्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली, ठीक है। या ये कोई भी, अगर कोई रिसर्च वर्क हो और कोई भी इंडस्ट्री में हो, रिसर्च वर्क ले लिया हमने, कोई इंडस्ट्रियल ले लिया, इंडस्ट्रीज ले लिया, स्टैटिस्टिकल टूल ले लिया, इट इज़ यूज्ड एवरीवेयर, ठीक है। हम लोग क्या हैं, इसको हर एक जगह क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। इन अ लेमैन लैंग्वेज, ठीक है, लेमैन लैंग्वेज के वर्ड्स में क्या है, स्टैटिस्टिक्स मीन डेटा और फैक्ट्स इन फिगर। स्टैटिस्टिक्स क्या है, डेटा है एज वेल एज फैक्ट्स है विच इज़ इन फिगर, ठीक है। न्यूमेरिक टर्म्स में होता है डेटा और फैक्ट्स इन फिगर। टेक्निकली द वर्ड स्टैटिस्टिक्स यूज इन टू डिस्टिंक्ट सेंसेस, ठीक है। टेक्निकली हम लोग स्टैटिस्टिक्स को क्या है, टू डिस्टिंक्ट सेंसेस में लेते हैं, विच इज़ इन सिंगुलर और इन प्लूरल। सिंगुलर टर्म्स में लेते हैं और प्लूरल टर्म्स में लेते हैं। स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर सेंस डील्स
with various tools of the statistical analysis, and in plural sense it deals with the quantitative and numerical information. Okay, so in the singular sense we deal with the various tools of the statistical analysis, uh, which we are using in the different tools when we study the different statistical analysis. And in plural sense it is means the it deals with the quantitative or numerical information. Okay, so it's all about your today's class. We will continue further in the next class. Okay, thank you.